देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, इसमें फर्स्ट लिखो कलर, the most striking external features, the most striking striking external features of the blood, features of the blood is its well known color, is its well known color which is bright red, which is bright red. Second है viscosity, second है viscosity, S VISCOSITY, viscosity. It is a somewhat viscous or sticky liquid. It is a somewhat viscous or sticky liquid. Its viscosity is about 4.5 to the 5.5. Its viscosity is about its viscosity is about 4.5 मतलब like लिखो 1.5 to the 5.5. समझ गए? Times that of water, times that of water, or it flows approximately, or its flow approximately same as it is 4.5 to the 5.5 times more slowly, times more slowly than water under the same conditions. Density, third. It's a little heavier than water. It's little heavier than water. Its specific gravity. Its specific gravity between 1.041 and 1.067. 1.067 full stop. The blood of male has a somewhat higher specific. The blood of male has a somewhat higher specific. Has a somewhat higher specific gravity than of woman. Gravity than that of woman. Of woman. Full stop. फिर है for temperature. A temperature of about 38 degrees Celsius. degree C Celsius. ओनली C भी लिखा तो भी चलता है. फिर है pH. ठीक. स्मॉल वाला P और H. pH. अब pH वैल्यू ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम approximately 7.38 to the 7.4 ब्रैकेट कंप्लीट.
7.38 to the 7.4 bracket complete. These range cover the values for these range covers the values for arterial and venous blood. Arterial and venous blood. Six है amount. Next है amount. कितना हो गया सबका पूरा? इसमें लिखो blood constitute about 7 to 9% of total body weight. Constitute about 7 to 9% of total body weight. Full stop. अभी नीचे लिखो in a male 4 to 6 liter of blood. 4 to 6 liter of blood. फिर उसी के नीचे लिखो in a female 4 to 5 liter of blood. In a female 4 to 5 liter of blood. फिर लिखो function of blood. फर्स्ट पॉइंट लिखो ब्लड क्या करता है हार्ट में ऑक्सीजन क्या करता है कैरी करता है उसमें फर्स्ट लिखो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इट कैरीज द ऑक्सीजन ऑक्सीजन को O2 लिखा करो शॉर्ट में ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू सेकेंड लिखो न्यूट्रिशन भी क्या करता है वो ब्लड से ही मिलता है बराबर है वो प्रोवाइड भी करता है तो सेकेंड लिखो इट कैरीज टू द टिश्यू न्यूट्रिटिव इट कैरीज टू द टिश्यू न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन थर्ड पॉइंट लिखो फिर क्या करता है हार्मोन्स भी जनरेट किसके थ्रू होता है ब्लड के थ्रू होता है उसी के साथ सिक्रीशन भी कैसे होता है ब्लड के थ्रू ही होता है थर्ड पॉइंट लिखो इट कैरीज प्रोडक्ट फ्रॉम in one tissue to the other tissues where they are used full stop it carries hormones and internal secretions carries hormones and internal secretion fourth point लिखो it carries the waste product of metabolism to the organ of excretion the lungs, kidney, intestine, spleen. The lungs, kidney, intestine and spleen.
पॉइंट लिखो, स्किन लास्ट का, ठीक है। फिफ्थ लिखो, इट एड्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इट एड्स AIDS in maintaining the temperature of body, temperature of body at a normal level, at a normal level, full stop. 6th point, it is a maintaining the normal acid base balance, it is a maintaining the normal acid base balance of tissues, acid base balance of tissues. 7th point है, it constitute a defense mechanisms, it constitute a defense mechanisms against the invasion, against the invasion mechanism, against the invasion of harmful organisms, of harmful organisms. 8 point लिखो, it maintaining water amount, sorry, it maintaining water content, और लास्ट पॉइंट है 9, it clots preventing loss of blood, it clots preventing loss of blood after trauma, loss of blood after trauma. देख लिया। फिर हेडलाइन दो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन क्या है अभी आप बता सकते हो, क्या ऑक्सीजन कैरी करता है, एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, वाटर का कंटेंट मेंटेन करता है, और हार्मोन्स है, सिक्रीशंस है, समझ गए। ब्लड यानी कि बॉडी में ब्लड का कितना बड़ा काम होता है, ठीक है। फिर एक कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हेडलाइन डालो,
एक सेल्स होते हैं, सेल्स में टाइप्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लास्ट में होता है प्लेटलेट्स और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, सेकेंड टाइप। और उसके प्लाज्मा सेकेंड है सेल्स, सेल्स में कौन सा आएगा, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स जिसमें क्या क्या काम किया जाता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। फिर है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसिस, ठीक है। आरसीबीसी टेस्ट में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो अपन चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन अगर है, अगर एक बात होगा वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी वीक है। आरबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाए तो फिर और ये किसी कौन से डिसीज में ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डेंगू अपन ने पढ़ा था, ठीक है। प्लाज्मा कौन सी डिसीज में चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स के साथ प्लाज्मा भी कम होता है, वो भी डेंगू में अगर थर्ड स्टेज है तो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, प्लेटलेट्स अगर कम हो, प्लेटलेट्स भी क्या कर रहा है, किसी ना किसी को तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, अगर वो कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाएगी, जो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट है जो फंक्शंस है वो सारे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हार्मोन और न्यूट्रिशन नहीं होगा, उसके साथ साथ बराबर जो फंक्शंस है अगर याद आ गए तो उसके अपोजिट में क्या होगा कि बॉडी में सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यही तक पढ़ते हैं, बाकी आगे का कल देखेंगे। अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक है आप लोगों को, आप वॉशरूम होकर थोड़ा फ्रेश होकर आ सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है अभी तो यार जो सीखा है उसमें, फिर इसी डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको किसी को कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगर ये टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ गए तो आप इससे रिलेटेड कैसे लिखोगे, समझ में आ गया ना, ट्रिक भी बता दी, लिखोगे कैसे, चलो पॉइंट को बताओ एक एक करके कैसे लिखोगे, नहीं ओनली कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा है तो ये सिर्फ चार्ट है आपको जो नोट्स में है, जैसे अपन डायग्राम अपन को अगर लर्न है डायग्राम तो उसको देख के अपन लिख सकते हैं ना कि इंटरनल इसमें ये लेयर है, आउटर लेयर को ये बोला जाता है, बराबर है। जैसे डायग्राम को देख के अपन को पता चल जाता है, वैसे इस चार्ट को देख के आप सेंटेंस या फिर पॉइंट्स कैसे बनाओ, ये तो शॉर्ट नोट्स हो गया आपके लिए, सिंपल सी बात, बताओ। करेक्ट, हाँ, cells also divided in a 3 parts, correct, or red blood cells, that is called RBC. White cells are divided into 3 parts, that is leukocyte, monocyte, granulocyte, and the last cells are platelets and thrombocytes. अभी इसमें एडिशनल क्या करोगे, ये तुमने देख के बता, the erythrocyte also called as the red blood cells, second name, करेक्ट, ये पॉइंट हो गया। सेम एज इट इज वाइट ब्लड सेल्स का शॉर्ट फॉर्म इज डब्ल्यूबीसी, आप कुछ पॉइंट गेट कर सकते हो। प्लेटलेट्स आर सेकंड नेम इज अ थ्रोम्बोसिस, इज आल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसिस, करेक्ट। फिर इसी के साथ इन सब की नॉर्मल वैल्यूज जो है आपको बता रहेगी आगे जाके, इसको डीपली देखने वाले अपन कल, ठीक है। अगर कंपोजिशन पूछा है तो उससे रिलेटेड आपको क्या है शॉर्ट में बता लेना चाहिए, ठीक है। अभी उसी के साथ मैंने कौन सी बोला, अगर आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया होगा, बराबर है। इफ आरबीसीज आर लेस अमाउंट इन अ बॉडी सो व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, डिजीनेस फील होगा। तो ये सारे क्या है आप उसमें ऐड कर सकते हो पॉइंट। लिखना कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ, किसी एक से चार्ट से आप कम से कम एक पेज तो भी आप लिख जाना, पॉइंट्स बना समझो उसको, और क्या ऐड कर सकते हो, ये कम होने के बाद क्या होगा, ये ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, ये ऐड कर सकते हो। सेम ऐसे इस तीनों इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है ये लिख सकते हो आप उसी में, बराबर है। नॉर्मल वैल्यू अपने को आगे जाके पता ही चलेगा, बराबर है। तो सिंपल है, इसके फंक्शंस है, बराबर है, फंक्शंस पता है। इसके अपोजिट में मैंने बताया था कि क्या क्या चेंजेस होंगे बॉडी में, जैसे हार्मोन हो गई, सिग्नेचर्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होगा, बराबर है। ये सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे इसमें डाल सकते हो, सिंपल है। इसलिए कम से कम 1.5 पेज को आप आराम से लिख सकते हो,
तो इसको देख के आपको क्या है समझ में आ जाए। सेम एज इट इज जब आप प्रेजेंटेशन भी करते हो तो गिला कैसे शॉर्ट्स में बना के रखो चार्ट्स, तो वो आपके लिए सिंपल रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको समझेगा। समझ गए? अभी पेश होता है। तो मैम आवाज़ दे रही। विकास नाही होता ते